everyone. Today we are going to read the chapter number 5 of NCRT. Okay, and if you are watching my almost all videos, then do not forget to subscribe my channel. Okay, to chapter number 5, which is life process. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running or a cow chewing a cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog and the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive. But how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. What about plants? How do we know that they are alive? We see them green, some of us will say, but what about plants that have leaves of colors other than green? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive, but a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So, using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. Movements over very small scales will be invisible to naked eyes. Movement of molecules, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोप के लेवल के होते हैं, उनको क्या होता है कि हम अपनी आइज से देख नहीं सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. Why are molecular movements needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have tissues have cells, and cells have smaller components in them. In your class 9th, you have studied about the chapter number 2, which is cell, the building block of life. उसमें क्या होता है कि cells होते हैं, सेल्स के ग्रुप से मिलके टिश्यू बनते हैं, ठीक है, और टिश्यूज से मिलके ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. और ये क्या होता है, इनके सेल होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, सेम वर्क करते हैं, ठीक है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, और उनका वर्क उन टिश्यूज के अकॉर्डिंग, जैसे कोई फूड है, फूड ट्रांसफ़र करना प्लांट्स में या फिर एनिमल में जो टिश्यूज़ मिलते हैं, वो कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी किया होगा आपने 10th में, या फिर यहाँ पर भी मैंने बता दिया कि व्हाट आर द सेल्स एंड टिश्यूज़. ओके, we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, have cells, and cells have smaller components in them, and so on. Because of the effect of the environment, this organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organisms will no longer be alive. अगर जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो इनका जो वो नेचर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो अलाइव नहीं रह पाते. सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. तो इसलिए ये जो सेल्स और टिश्यूज़ है, जो भी लिविंग क्रिएचर्स है, उनको अपने स्ट्रक्चर्स रिपेयर या मेंटेन करनी रख पड़ती है. सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. ये जो स्ट्रक्चर हम जानते हैं मॉलिक्यूल से मिलकर ही बने होते हैं, जो भी सब्सटेंस है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, मॉलिक्यूल. तो वो क्या करने चाहिए, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. तो उन्हें मॉलिक्यूल्स मूव करते रहने चाहिए.
व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम देखेंगे ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखता है। पैराग्राफ में क्या देखा कि कैसे जो है लिविंग और नॉन लिविंग जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सॉरी प्लांट्स होते हैं, या फिर हम कैसे मतलब डिफरेंस होता है उनमें, ठीक है। और उनमें मूवमेंट्स जैसे कोई बैक्टीरियाज होते हैं या फिर कुछ भी इन्फेक्शंस होते हैं तो उनमें भी मूवमेंट्स होते हैं जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते उन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो इस तरह से अभी ये कोई ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है। तो अब हम आगे देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉरी, जो लाइफ प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ठीक है। The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particularly. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि वो मान लो वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, दिस मेंटेनेंस जॉब्स हैज टू गो ऑन। The processes which together perform this maintenance job are life process। और इसी को ही क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो अगर इफ वी वांट सी द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस तो क्या होगी, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलरली, even when we are just sitting in class, even we are just asleep, this maintenance job has to go on। The process which together perform this maintenance jobs are life processes। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed from them। तो इस मेंटेनेंस को रखने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर से ये एनर्जी मिलती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम outside the body of the organism which we call food to the inside, if we commonly call nutrition। तो जो भी हम फूड लेते हैं उनसे क्या मिलते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। तो जब हम उसे क्या करते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं तब तो उसे कहते हैं फूड। जब ये फूड हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे ये न्यूट्रिशंस कहा जाता है। ओके, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर हम बॉडी के साइज और बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी ग्रो करना चाहते हैं तो उनके अलावा जो मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। So life on earth depends on carbon based molecules। Most of these food sources are also carbon based। तो जो भी ये जो फूड होता है ये कार्बन बेस्ड होता है। Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kind of nutritional प्रोसेसेस। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो खाना होता है या फूड होता है वो अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन देते हैं। जैसे कुछ फूड्स में कम न्यूट्रिशन होता है तो इससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ओके, the outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism। हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना environment को कंट्रोल करना। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for the maintaining living structures। तो क्या है ना कि बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या होता है कि इन्वायरमेंट से क्या होता है कि अलग अलग तरह के सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं कि जो हमारी नीड है ना उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसे लेते हैं
और उसको या फिर उसको एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर हम उसे कंज्यूम करते हैं, और हम उतना ही कंज्यूम करते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रो के लिए ज़रूरी है। फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी, और इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर ये हमें एनर्जी कैसे देता है, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, वो क्या है, कॉमन है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे क्या करती है, ये मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है, ठीक है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म को बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। तो रेस्पायरेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रेस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड्स, इट इज़ व्हाट वी कॉल रेस्पायरेशन। फूड लेते हैं, जो हम फूड लेते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी हम फूड लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, उनको जितनी एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है कि हमारी बॉडी बाहर से ऑक्सीजन लेती है और इन फूड को क्या करती है, ब्रेक करती रहती है, जितनी हमें सेल्स की ज़रूरत होती है उतना। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो जितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत है या जो फूड सोर्सेज की ज़रूरत है, उतना वो ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होती है, रेस्पायरेशन। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर टेकिंग इन फूड। जिनमें केवल एक ही सेल प्रेजेंस होती है, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है खाना खाने का। एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन द कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज करती है और जो वेस्ट होता है अपनी बॉडी का, उसको ही हटाती है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अब मान लो कि मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म बन जाए, बहुत सारी सेल को मिला के बने, तो क्या होगा, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग। क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स होते हैं जो डायरेक्ट सराउंडिंग से कांटेक्ट में नहीं होती। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो केवल एक सिंपल डिफ्यूजन्स जो है हमारी सभी सेल्स की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती है। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform। हमने देखा होगा जो लास्ट जो सेल वाला चैप्टर ही था, तो उसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स कैसे परफॉर्म करते हैं फंक्शंस। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, ठीक है, एंड विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि जाइलम है, वो क्या करता है, जो वाटर होता है उसको ट्रांसफर करता है बॉडी में, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज। कि जैसे कि हमने देखा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उनको कैसे पहचानते हैं कि जब उनमें कोई मूवमेंट दिखाई देता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लांट्स को देख लो, वो कोई मूवमेंट नहीं करते, वो एक ही जगह पर होते हैं, बट वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और माइक्रोस्कोपिक स्केल पे क्या होता है कि मूवमेंट्स नहीं दिखाई देता है आइज से, जैसे कि मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, बट इसमें क्या बताया गया है कि सेल्स होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होती है जब तक वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आता। फिर कांटेक्ट में आने के बाद उनमें मोशन होती है, फिर भी वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है।
और ये भी देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उनकी स्ट्रक्चर होती है जिसमें वो टिश्यूज से बने होते हैं। टिश्यूज जो है वो सेल्स से बने होते हैं और सेल्स भी क्या है, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। उनके भी पार्ट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं उनके। ये क्या होती है कि इन्वायरमेंट में क्या होता है कि चेंजेस के कारण ये ऑर्गेनाइज्ड होने लग जाती है। ओके, और ये ब्रेक डाउन होने लगती है टाइम के साथ साथ, ये ब्रेक डाउन होती है, ये जो जो भी इनकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिससे कि क्या है कि वो ज़्यादा टाइम तक वो लिविंग ना रह पाए। इसलिए क्या होता है कि इनको रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है टाइम टू टाइम। और जो मेंटेनेंस का काम होता है, मेंटेनेंस का काम जो मेंटेनेंस करना, जो प्रोसेस होती है मेंटेनेंस की, उसी मेंटेनेंस के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और सेल्स की नीड्स के अनुसार वो क्या करती है कि जो हमारे फूड्स होते हैं, जो हमने इनटेक लिया है फूड, उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हमारी सेल्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ओके, और फिर हमने देखा था कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर तो क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, फूड लेने, उनके कोई फूड का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। फिर हमने देखा जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जो ऑक्सीजन और जो कार्बन होती है, और या फिर ऑक्सीजन और फूड होता है जो हमें बाहर से चाहिए होता है, वो सभी जो टिश्यूज़ है वो नहीं कर पाते हैं। ओनली कुछ टिश्यूज़ ही होते हैं बॉडी के जो जो फूड ले सकते हैं और ऑक्सीजन ले सकते हैं। ओके, तो उनको क्या है कि उनके स्पेशल, तो फूड और ऑक्सीजन को एक बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिससे वो फूड कैरी कर सके और ऑक्सीजन को वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक पहुंचा सके। ओके, फिर क्या है, व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशंस, उस वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होने लगती है वहाँ पे, ठीक है, और किसमें, कार्बन सोर्सेज और ऑक्सीजन में, जिससे कि एनर्जी जनरेट हो सके। उसके साथ साथ ही क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करके उनमें क्या होते हैं, कोई बाय प्रोडक्ट्स भी क्रिएट होने लगते हैं, और वो जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, और दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इन बाय प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय प्रोसेस, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रेशन। अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर द बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रेशन विल बी डेवलप्ड। के लिए एक स्पेशल टिश्यू डेवलप किया जाता है या होता है, विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू इट एक्सक्रेटरी टिश्यू, और वो टिश्यू कौन सा होता है, वो एक्सक्रेटरी टिश्यू होता है। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। ओके, तो इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।